एजुकेशन सिर्फ कोई कैरियर बनाने का काम नहीं है ना। एजुकेशन देश बनाने का काम है, समाज को खड़ा करने का काम है। Why should people pay for education? Nation should take care of the national education, nation's education. It's not subsidy. I disagree with this word. Education should not have a cost. Hello and welcome to Outlook Bibliophile. Today we have a very special guest who is actually a politician but now an author. Thank you very much, Manish Sisodia, who is Delhi's Deputy Chief Minister and the Education Minister, and he's come up with this book Shiksha, which is what the AAP, the party that he belongs to, AAP, has done in the last 4 years to transform education in the education system in Delhi. In fact, we are in a school which I am told that 4 years ago was in a pretty bad condition, and we'll show you a little footage as we go along as to how this school, it's in central Delhi, happens to be actually just next to the BJP office, but it's so we'll show you a little bit about what the kind of transformation that he's going to talk about. Manish ji, I wanted to actually begin by asking, when you came to power in Delhi, there were so many issues the city was facing. There was pollution, there was traffic, there was women's safety. What made you focus on education as one of the mainstay of your party's, As I have mentioned in the book also, that we believe in education. We believe that lots of problems in our country are there because we don't have quality education for all. And unless and until we have quality education for all, we can't solve those problems. Joblessness is one thing, poverty, misbehavior, mistrust, violence, crime against women. On one hand, we need better law and order situation in the country, but on the other hand, we have better sense of belongingness, sense of being, professionalism into our life, into our approach. And that is missing in our education. एजुकेशन में ही आएगा तो ज़िंदगी में आएगा, ज़िंदगी में आएगा तो फिर पूरे समाज में आएगा। इसलिए वी थॉट कि एजुकेशन पे ही काम करना सबसे पहले ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, हम पहले से भी सोचते थे कि इस देश में एजुकेशन पे काम क्यों नहीं हो रहा है। और व्हेन वी केम टू पावर तो हमें लगा कि अगर अब हम सत्ता में हैं तो वी कांट क्वेश्चन, वी हैव टू आंसर। करेक्ट। एंड वी स्टार्टेड विद, in fact, education is one of those issues which a party really can't sell to a voter. I mean, it's not really an election issue in that sense, which also a point you make in the book. So it is not exactly a very popular issue that a party can take up to win votes. Actually, it is like people don't have understanding of education, especially people who are coming to power. And it was never mandatory also that educationists or people who understand education to come to power. I have mentioned again this in the same book that in our country, if you want to become education minister, you need not to be an educationist. You just have to win an election. It's not easy, but still, the route of becoming education minister is not having good knowledge or experience or understanding of education. Route to become education minister is you have to be a politician in ruling party. You have to win the election and then even if you have not understood E of education. That's true. Same with education secretary, same with education director. They have to cross UPSC examination, we have to cross election. What about education? ना शिक्षा मंत्री को एजुकेशन का ये पता होगा, ना डायरेक्टर को पता होगा, ना सेक्रेटरी को पता होगा, फिर और ये तीन लोग मिलकर सारे निर्णय लेते हैं पूरे देश में। मैंडेटरी नहीं है। तो जब तक एजुकेशन, और इसीलिए पॉलिटिक्स में एजुकेशन हो नहीं सकती है, हो नहीं पाती है कि अगर पॉलिटिक्स में ये ज़रूरी हो जाए कि शिक्षा मंत्री वही बनेगा जिसका एजुकेशन से वास्ता होगा या जिसको एजुकेशन की समझ होगी, फिर आप देखो एजुकेशन के लिए भी बात होने लगेगी। अभी जनता के बीच में भावुक करके या लॉजिकल रूप से चुनाव लड़के जीतने वाले लोग शिक्षा मंत्री बनते हैं, उनका एजुकेशन से इससे वास्ता होना जरूरी नहीं है। एंड ऑल्सो आई सपोज इट इज़ एन इशू विच टेक्स टाइम। जब किसी को पता लगे कि दिल्ली वासी को कि उसका बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, मतलब he's got a bright future, so it is not a one-off issue of it's a, I suppose once people realize that, then it takes time, isn't it? I mean it takes time. और मतलब आपको एजुकेशनिस्ट
मतलब एजुकेशन पे काम करते हुए आपको बहुत विजिबल प्रायोरिटीज़ हो सकता है बदलनी पड़े, हो सकता है आपको पुल बनाने का डिसीजन रोकना पड़े, हो सकता है कोई सड़क बनाने का डिसीजन रोकना पड़े, हो सकता है कोई फैंसी चीज़ बनाने का डिसीजन रोकना पड़े. एजुकेशन इज़ नॉट दैट मच विजिबल, राइट, और बट एजुकेशन इज़ विजिबल इन सोसाइटी. आप समाज को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के स्कूल कैसे होंगे, राइट. आप पुल देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ का समाज कैसा होगा. Correct. You know, sir, one of the things that you have said in the book is that soon you would want Delhiites, citizens of Delhi, to want to send their children to government school rather than private schools. I mean, that is a really sort of an ambitious challenge. By when do you think that is actually possible? It is happening right now in this classroom where we are sitting. Many of the children who are studying here right now were not in government school 2 years back. 2 years back they were studying in some private school. But now since we have good quality school, we have good quality ambience of education, we have got good results also. So now people are sending their kids to government school from private schools. They are transferring. So then that's quite quick time. I mean, it was, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी होने लगेगा. हमें लगता था कि there would be a fine day when the situation will change. But 4 साल में लोग बदलने लगेंगे. आज सीरियसली, आज जिस स्कूल में हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस क्लासरूम में बैठने वाले कम से कम 50% बच्चे प्राइवेट स्कूलों से आके यहाँ पढ़ रहे हैं. That's amazing. So how does the fee structure would work then? I mean, I know education is it's subsidized obviously by the government. In Delhi, it's free of cost. It's free. 100% free. So, but won't you think that people who are leaving private schools and who can afford to pay? I mean, would you like to have how would you like to sort of monetize that? No, I don't agree with this ideology. People can afford their security also. तो कल हम पुलिस को प्राइवेटाइज कर देंगे. देयर वुड बी पीपल हु कैन अफोर्ड जस्टिस आल्सो टुमारो. तो कल हम कहेंगे इनको अपने अपने जजेस रखने दो प्राइवेट. सो इट्स नॉट, आई मीन एजुकेशन सिर्फ कोई कैरियर बनाने का काम नहीं है ना. एजुकेशन देश बनाने का काम है, समाज को खड़ा करने का काम है. What I meant was तो एजुकेशन में तो सरकारों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. दुनिया के जितने भी देश, हम प्रोग्रेसिव देश देखते हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है. तब बच्चे बढ़े हैं, तब समाज बढ़ा है. हम प्राइवेट इंडस्ट्री पे नहीं छोड़ सकते हैं कि दोज हु कैन अफोर्ड कैन बेयर इट. नो, इवन मेक योर एजुकेशन सिस्टम कि दुनिया का देश का हर आदमी सोचे कि मुझे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है. मेरे पास बहाने के लिए फालतू का पैसा है तो मैं ठीक है प्राइवेट स्कूल में बहा लूँगा, लेकिन पैसे वाला भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए. What I meant was, people who don't need to, the education to be subsidized. Like say, people have left out gas cylinders, without they are taking without subsidy. Do you think you can have some kind of a dual fee structure? Is what I'm talking about. For me, there is huge difference between a gas cylinder and education. गैस सिलेंडर मैं घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, बट एजुकेशन में मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो वो सिर्फ एक घर का नागरिक नहीं बनता है, घर का मेंबर नहीं पढ़ रहा है, वो इस देश का एक नागरिक भी पढ़ रहा है, एक ह्यूमन बीइंग भी पढ़ रहा है. तो अगर हमें इंसान खड़े करने हैं, अगर हमें नागरिक खड़े करने हैं, सो इट्स नॉट सब्सिडी. मैं तो उल्टा पूछता हूँ, व्हाई शुड पीपल पे फॉर एजुकेशन? नेशन शुड टेक केयर ऑफ द नेशनल एजुकेशन, नेशंस एजुकेशन. It's not subsidy. I disagree with this word. Education should not have a cost. कल को मैं कहूँ आर्मी को प्राइवेटाइज कर दो, ऐसे थोड़ी होगा यार. देश की सुरक्षा का काम आर्मी ही करेगी. तो देश को शिक्षित करने का काम सरकारी स्कूलों को ही करना पड़ेगा. आप फेल हो रहे हैं इसलिए आपको प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना पड़ रहा है. You've started, as you mentioned in the book, various sort of unheard of things in government school. Like for instance, this simple thing like a parent-teacher meeting. It never used to happen for various reasons. You could, but so how has like for instance this experiment, I hear a lot of good things about it outside. लोगों ने अपने बच्चों का कभी बच्चों के टीचर को मिले ही नहीं है. It's the first time. होता था प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स मिल नहीं पाते थे, पेरेंट्स को अंदर आने की एक्सेस नहीं थी. उसको हमने तोड़ा और पेरेंट्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम स्कूल में जाके प्रिंसिपल से, टीचर से मिलके बात कर सकते हैं. तो हमने स्कूल के ख़ासतौर से पेरेंट टीचर मीटिंग्स को बहुत वेलकमिंग बनाया. हमने पहली पेरेंट टीचर मीटिंग की थी तो वहाँ खूब उसका प्रचार किया, रेडियो पे ऐड किया, अखबारों में, टीवी में ऐड दिया. मतलब टीवी में तो नहीं, बट SMS के ज़रिए लोगों को ऐड दिया. तो लोगों को इंकरेज किया. तो बड़े बड़े लोगों को पता चला कि यार गवर्नमेंट स्कूल में पहली बार PTM हो रही है, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को, अपने मेड को, अपने चपरासी को, सबको कहा यार तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना.
तो तुम पीटीएम में चले जाना, छुट्टी ले लेना. दिस हैपेंड एक्चुअली. आफ्टर दैट व्हेन दे केम टू स्कूल, दे वर वेलकम विद टीका, वेलकम विद फ्लावर. उनको स्वागत किया गया, उनको चाय वाय ऑफर की गई, चाय बिस्किट वगैरह खिलाया गया कि यू आर वेलकम, आप यू आर इम्पोर्टेंट टू अस. और फिर एक बच्चा जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, उनको पूछ के कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, स्कूल के गेट से रिसीव करके उस क्लास तक एस्कॉर्ट करके आया, वहाँ बता के आया, इन बिटवीन उसको बताया कि मैं आपको क्लास टीचर के रूम में लेके जा रहा हूँ, फिर ये सब्जेक्ट टीचर्स भी हैं, इनसे भी आप मिल सकते हो. तो इस सब से उनका कंफर्ट लेवल बढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा. आज पेरेंट्स अपने बच्चे के स्कूल को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, वो क्वेश्चन पूछने में कॉन्फिडेंस हैं, वो बच्चे से बात करने में कॉन्फिडेंट हैं. तो ये एक माहौल बदला है. And teaching used to be this one, the most honorable vocation that one could do. To somehow in between it had become, I think, quite commercial, and the teachers had started getting a bad name. That they are really not interested. They don't attend schools. They don't really take classes. So that this mentality. I mean, I can imagine how difficult it would be to really sort of get into their heads and sort of change that. How would you continue doing it? इसका देखिए, एक तो कुछ परंपराएं शुरू हो गई हैं, तो अच्छी परंपराएं जो शुरू हो गई हैं वो आगे तक चलेंगी. बजट लगातार चाहिएगा. पैसा एजुकेशन में आपको, इफ़ आई एम नॉट सेइंग 25% एवरी ईयर, मे बी in some year it could be 20%, some year it could be 30% also if needed. It depends on the need. आपको as and when required पैसा खर्च करना पड़ेगा. आपको टीचर्स ट्रेनिंग के और नए नए तरीके डेवलप करने पड़ेंगे. बहुत सारे और नई चीज़ें होनी हैं. दिल्ली में एजुकेशन का नया बोर्ड बनना है, दिल्ली में कई नई यूनिवर्सिटीज़ बननी हैं. दिल्ली का, बल्कि ये तो मैं देश भर के बारे में कहता हूँ, एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज करना है. एग्जामिनेशन सिस्टम अभी चेंज नहीं होगा तो वही रोट लर्निंग चलता रहेगा, हम कितने लर्निंग आउटकम पे बात करते रहें. तो ये चेंजेस होने हैं. आई होप कि बहुत जल्दी ये चेंज भी देखने को मिलेंगे. Of course, here we are talking about a sort of an urban scenario. It's a city we are talking about. Do you think this kind of changes that you're talking about, you're mentioning, can they be transposed to say, Madhya Pradesh, Jharkhand? You see, वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत है. दिल्ली में तो फिर भी, इफ़ यू टॉक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, देयर आर सर्टेन प्राइवेट स्कूल जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन की. आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं. पर गाँव के इलाकों में तो देखें तो गवर्नमेंट स्कूल एकदम ठप पड़े हैं. इनफैक्ट बंद होते जा रहे हैं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मैं कई राज्यों के नाम जानता हूँ जहाँ लगातार गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा रहे हैं. और प्राइवेट स्कूल्स को गाँव में मार्केट नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी हो गई है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ठीक से काम करे, और पूरे देश में ज़रूरी है कि गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ठीक से काम करे. Do you have this fear that suppose there's a regime change, or if some new government comes, what if this whole thing is dismantled, and what are you trying to do to fix things so that? I personally feel people of Delhi will vote for education this time, and this would be the first ever election in our country which will be contested on the issue of education. You are trying to ask me to say, assume if we fail. Yes. Agree, if we fail, education fails. फिर देश में कोई बात नहीं करेगा एजुकेशन पे. फिर देश में लोग मजाक बनाएंगे कि यार देखा, एक पार्टी थी 5 साल ज़िंदगी भर एजुकेशन के पे लगाए, सारा पैसा भी एजुकेशन पे लगाया, लोग वोट नहीं देते. बट आई हैव क्वाइट फेथ इन पीपल ऑफ दिल्ली. उन्होंने जिस प्यार से, जिस सम्मान से हमने एजुकेशन का वादा किया था, एजुकेशन के वादे पे वोट दिया था, अभी तो हमने करके दिखाया है. ये स्कूल जिनको आप देख रहे हैं, इतने शानदार डेस्क और ये सब, इन सब को मतलब यहाँ फट्टे वाली ये जाले लगे रहते थे इन कमरों में, टूटे फूटे दीवारें थी. आई विल शो यू सम पिक्चर्स. आई एम श्योर द प्रिंसिपल मस्ट बी हैविंग सम पिक्चर्स ऑफ दैट एरा. ये सब टूटे फूटे पड़े रहते थे. आज ये चमचमा रहे हैं. ये जो डेस्क हैं, इनको लाने में मुझे 1 साल मेहनत करनी पड़ी है, वरना फट्टे वाली डेस्क खरीदने की परंपरा थी. तो मतलब अगर रिजीम चेंज होता है तो सबसे पहले तो डेस्क निकाल के कोई बेच देगा, वही फट्टे वाली डेस्क आ जाएंगी. See, that is what I mean. Isn't that a fear? I mean, I'm quite confident. I completely agree with them. I salute your confidence. But at a time, the election time, there are so many other factors. There are so many. I'm only saying that what are you making it to make sure that even if there is a regime change, this doesn't change. You see, एजुकेशन तभी ठीक होगी जब ऑनेस्ट पॉलिटिक्स होगी.
if people don't choose honest politics, if people don't choose community politics, फिर एजुकेशन ठीक होगी नहीं. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस हार्ड रियलिटी. बाकी राज्यों में एजुकेशन में सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? सरकारी स्कूलों के डेस्क से लेकर कमरों तक की हालत इतनी ख़राब क्यों है? क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स का इंटेंट नहीं है. अगर हम ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चुनेंगे जो हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देगी, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखेगी, देन इट्स आवर चॉइस. तो होने वाला नहीं है. अगर आप सारी जान, जैसे कि हम लोग एक छोटेपन में कहानी सुनते थे कि एक राजा था, उसकी जान तोते में थी. यहाँ सारी जान पॉलिटिक्स में है. अगर आपको एजुकेशन ठीक करनी है, पॉलिटिक्स एजुकेशन के लिए कमिटेड लानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं. इफ दैट पॉलिटिक्स फेल्स, एजुकेशन फेल्स. यस. Thank you very much, Minister Sisodia. It was Thank great you. talking to you, and I'm sure it will, it will show results. And thank you very much. Thank you for joining Bibliophile.